آپ سب کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھیں۔ میرے ارمان خاک میں مل گئے تھے، رات ہوتی میں تڑپنے لگتا، لیکن میری خواہش کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری دونوں بیویاں مجھے خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک مرد کو اپنی بیوی سے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے نہیں دے سکتی تھی۔ شاید وہ مجھے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں ایک شوہر ہونے کی لذت سے محروم تھا۔ جب پہلی بیوی مجھے خوش نہیں کر پائی تو میں نے دوسری شادی کی، مگر شادی کی پہلی رات ہی جب میں دل میں ہزاروں ارمان لیے اپنی نفس کی آگ بجھانے کے لیے حرام کی بجائے حلال کا انتخاب کر لیا اور دوسرا نکاح کیا، میں چاہتا تو کسی بھی کوٹھے والی کو پیسے دے کر اپنے جذبات ٹھنڈے کر سکتا تھا، مگر میں ایسا انسان نہیں تھا۔ جب میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا، وہ ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا حسن ستاروں کو مات دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے اندر کے جذبات ایک دم سے جاگ اٹھے، جنہیں اب تک میری پہلی بیوی نے سلا کر رکھا تھا۔ میں بہت پرجوش ہو کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن وہ مسلسل مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ میں اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہے، لیکن وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ تب مجھے شدید غصہ آیا اور میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، کیونکہ جو حق مجھے شرافت سے نہیں مل رہا تھا میں اس کو چھین کر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر آج میں نے اسے اپنا نہیں دیا تو میں پاگل ہو جاتا۔ شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب کیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر کے سمت بھاگی اور میری پہلی بیوی کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرا غصے سے بہت برا حال تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں سب تہس نہس کر دوں۔ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سے جو ایک ایک چیز میں نے سوچی ہوئی تھی، جو سحر، جو نشہ میری نس نس میں دوڑ گیا تھا، اب اس نے غصے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ میں ساری رات دروازے کے باہر کھڑا رہا اور زور زور سے دروازے کو پیٹنے لگا، لیکن مجال جو ان دونوں عورتوں نے میری ایک بھی بات سنی اور دروازے کو کھولا ہو۔ جب میں تھک گیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی قسمت کو رونے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرے نصیب میں بیوی کا سکھ ہی نہیں ہے۔ دو دو بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا۔ میری راتیں ایسے ہی بے رنگ اور خالی گزرتی تھی۔ دن کو جب میں آفس میں ہوتا تھا تو وہ دونوں گھر میں دندناتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، کھانا بنا کر رکھتی تھی، ایک ایک کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور دونوں سہیلیوں کی طرف بالکل مل کر رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سوتن نہیں سہیلیاں ہیں۔ میری ذات سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھی کہ ان کو میں گھر میں لایا تھا۔ شوہر کو تسکین دینے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو خوش کر رہی تھی اور ایک دوسرے میں مصروف تھی۔ وہ روز رات کو کمرے میں کنڈی لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ سوتی تھی۔ شام کو جب میں واپس آتا تھا تب وہ دونوں چپ چاپ کاموں میں مشغول ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میری طرف سے بالکل لا تعلق تھی۔ وہ میرے سارے کام کرتی تھی، میرے کپڑے استری کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، میرے لیے قسم قسم کے لذیذ کھانے بنا کے رکھتی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ مجھے جو خوشی چاہیے تھی وہ دونوں مجھے دینے سے قاصر تھیں۔ دل کو میں کچھ بھی بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر ہماری ملازمہ ہوتی تھی۔ اس دوران بھی اگر مجھے وہ دونوں مل جاتی تھی تو میں ان کو پکڑ لیتا تھا تاکہ رات کو نہ صحیح دن کو ہی وہ اپنی طلب میں پوری کر لوں، لیکن ایک دم سے وہ چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ ڈر کے مارے میں ان کو چھوڑ دیتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی بیویوں پر تشدد کرتا ہوں یا ان کو مارتا پھرتا ہوں، اس لیے وہ چیختی ہیں۔ ان کے چیخنے کی وجہ سے مجھے ان سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا چھری سے میں ان کی زبان کاٹ دوں۔ اور جیسے ہی شام ہوتی وہ دونوں کمرے کے اندر گھس کر ایک دوسرے سے مصروف ہو جاتی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتا تھا، دیواروں پر سر مارتا تھا۔ ایک بار میں غصے سے بہت تیز دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، تبھی ہمارے پڑوس والے انکل آئے اور بیل بجا کر کہا کہ اگر گھر میں لگتا ہے آپ کے کوئی لاک ہو گیا ہے، مسلسل دروازہ بج رہا ہے، آپ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ ہماری نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دروازہ لاک ہو گیا تھا، اس کا لاک خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے کھل نہیں رہا تھا، اب وہ کھل گیا ہے۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھے، اس وجہ سے اب میں نے راتوں کو دروازہ بجانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا، نہ میں اسے اپنے کسی یار دوست سے، کسی رشتہ دار سے بات کر سکتا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے گھر میں اور کوئی فرد نہیں تھا، صرف میری دونوں بیویاں تھیں اور دن کو ملازمہ آتی تھی جو میری بیویوں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔
लेकिन अब मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं दोनों बीवियों को अलग अलग रखूंगा। जब दिन को मैंने यही बात इन दोनों की तो वो दोनों रोने लग गई। खासकर मेरी छोटी वाली दुल्हन, वो बहुत ज्यादा रोने लग गई और बड़ी वाली बीवी से लिपट गई। मुझे इनका यूं लिपटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि काश इन दोनों में प्यार मोहब्बत की बजाय एक दूसरे से नफरत होती, जिस तरह सौतन में होती है। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। जो मेरे साथ सब उल्टा हो रहा था। वो दोनों किसी सूरत एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थी और मैं मारे शर्मिंदगी के किसी को बता भी नहीं पा सकता था कि मेरे घर में कैसा खेल रचाया जा रहा है। अगर मैं कुछ बोलता तो लोगों को यही लगता कि शायद मैं ही ना मर्द हूँ और अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता हूँ। इन्हें वो खुशी, वो तस्कीन, वो लज्जत नहीं दे पाता जो एक मर्द एक औरत को दे सकता है। दर हकीकत यहाँ तो मामला ही उलट था। एक मर्द की अगर ख्वाहिश ही तकमील ना हो पाती हो, वो ऐसे ही पागल हो जाता है। मेरे अंदर जो आग जल रही थी, मेरे बाहर भी जलने लगी थी और मेरे वजूद को झुलसा रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं इस आग में जल जल कर मर जाऊंगा। लेकिन अब मैंने फैसला जो किया था वो अटल था। इन दोनों औरतों ने जिस तरह मुझे परेशान कर रखा था, अब इनकी बारी थी परेशान होने की। मैंने अटल फैसला कर लिया था कि मैं इनको अलग अलग घर में रखूंगा। एक दिन मेरे दोनों बीवियों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरी मुलाजमा दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि आपकी दोनों बीवियों की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे भी अब इन दोनों की कोई फिक्र नहीं थी। मेरा दिल इनकी तरफ से बहुत बुरा हो चुका था। मेरा दिल करता था दोनों मर जाएं मेरी बला से। लेकिन मुलाजमा की वजह से मुझे इनके पास जाना ही पड़ा। तो मैंने देखा मेरी दोनों बीवियां अपने पेट पकड़कर रो रही हैं। दर्द के मारे इनके रंग पीले पड़ गए हैं। मैंने फौरन से डॉक्टर को बुलाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मैं हैरत में दंग रह गया था, क्योंकि मेरी दोनों बीवियां ही एक साथ हामिला। जाने कैसा इम्तिहान था, ये कैसी अजियत थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने जो अपने सुकून, अपनी लज्जत के लिए शादी की थी, वही शादी मेरे लिए अजाब बन गई थी और दूसरी शादी करना मेरी इससे भी बड़ी गलती थी। मुझे लग रहा था कि जब पहली बीवी मुझे खुश नहीं कर पा रही थी तो दूसरी से मैं खुशी और आराम हासिल कर लूंगा। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। बीवी का सुख शायद मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं था। मेरी अजदवाजी जिंदगी बिल्कुल बेरंग बेरौनक थी। मैं वैसे ही कवारे का कवारा था जैसे पहले था। मैं चाहता तो अपनी ख्वाहिश की तकमील गलत रास्ता अपना कर सकता था, लेकिन मैं गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहता था। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाऊंगा जो मुल्क से बाहर रहती थी और मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी। मेरे माँ बाप ने अपनी जिंदगी में ही उसकी शादी कर दी थी। फिर वो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क सेटल हो गई थी। वो मुझसे फ़ोन पर बात करती थी और जब वीडियो कॉल में बात करती थी तो यही पूछती थी कि तुम परेशान बीमार क्यों लगते हो और दोनों भाभियां कहाँ पर हैं। लेकिन मैं उसको अपनी परेशानी नहीं बताता था, क्योंकि वो दूर परदेश में बैठी थी और मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। उसको खामखा में परेशान क्यों करता मैं। लेकिन अब जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा हाल दीवानों जैसा हो रहा था, तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, फ़ौरन वापस आ जाओ। मेरी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि हम दोनों सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, जैसे ही मेरा टिकट होगा मैं वापस आ जाऊंगी। मैं सोच रही थी शायद मेरी बहन आकर इन दोनों को समझाए और मेरी मुसीबत का कोई हल निकाल दे, और मैं तो इनके करीब ही नहीं गया। फिर ये दोनों कैसे हामिला हो गई थी। मैं अपनी परेशानी घर से बाहर नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए अपनी बहन को घर पर बुलाया था। 1 हफ्ते बाद मेरी बहन पाकिस्तान आ गई थी। उसको देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। इससे गले लगकर मैं रोने लगा। वो मुझे समझा रही थी, बहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि क्यों मैं रो रहा हूँ और क्यों इतना परेशान हूँ। मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई है कि मैं 30 के बजाय 40 का लगने लगा हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा कि आप आराम करें, खाना खा लें, हम फिर बात करेंगे। मेरी दोनों बीवियां भी इस दौरान इधर उधर खामोशी से बैठी हुई मेरी बहन के आगे खाने पेश कर रही थी। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी, क्योंकि अकेले में तो वो दोनों मुझे परेशान करती थी, अपने करीब भटकने भी नहीं देती थी। लेकिन बहन के सामने अब इन दोनों को यही परेशानी लाक हो गई थी कि वो दोनों किस तरह से इसका सामना करेंगी और किस तरह एक दूसरे के साथ रहेंगी। अगले रोज जब मेरी बहन सोकर उठी तो मैंने उसको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई और मुझसे कहने लगी, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, अच्छे हो, नेक दिल के इंसान हो, तुमने अपनी बीवियों को गाड़ी, सब घर सब कुछ दे रखा है, फिर आखिर वो दोनों इस तरह क्यों करती हैं? अगर कोई एक करती तो ये बात समझ में आती, लेकिन दोनों ही इस तरह क्यों करती हैं और तुमसे क्यों भागती हैं?
हालांकि लड़कियां तो अपने शौहर की तवज्जो पाने के लिए उसके आगे पीछे हो जाती हैं। मेरी बहन इस सूरत-ए-हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारा मसला नहीं हल कर लूँगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आखिर मैं पता करके रहूँगी कि दोनों इस तरह से क्यों करती हैं। अपनी माँ जाई, अपनी बहन से बातें करके मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था, मेरे दिल से बोझ हट गया था और अब मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया था क्योंकि घर के हालात की वजह से मेरा काम भी काफ़ी मुतासिर हो रहा था। परेशानी के बायस मैं अपने काम को तवज्जो नहीं दे पा रहा था। मैंने अपने सारे दुःख, अपनी परेशानियाँ अपनी बहन के आगे गोश-गुज़ार कर दी। अब मैं अपने काम पर तवज्जो देना चाहता था, जब तक वो इस मसले का कोई हल निकालती। मेरी बहन ने मेरी दोनों बीवियों को समझाया, उनसे बात की, लेकिन जो बात उन्होंने मेरी बहन को बताई तो मेरी बहन बहुत परेशान नज़र आ रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी बहन ने जो बात मुझे बताई, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या इस तरह भी हो सकता है? क्या ऐसा भी होता है? ऐसा पहले तो मैंने कभी नहीं सुना, ना देखा। मेरी पहली परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि एक और परेशानी और मुसीबत मेरे गले आकर पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बीवियों का कहना था कि जैसे ही मैं इनके करीब जाता हूँ, तो उनके पीछे एक काला हौला, एक काला साया होता है जो इनके करीब आने नहीं देता मेरे। वो बहुत भयानक शक्ल लिए होता है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत डर जाती हैं। सारा दिन, सारी रात वो इन्हें नज़र नहीं आता। मगर जैसे ही मैं इनके करीब आता हूँ, तो वो दोनों मेरी बीवियों को नज़र आता है और उन्होंने खौफ़ज़दा हो कर देता है इसलिए। वो रोती-धोती कमरे के अंदर छुप जाती हैं, दरवाज़े को कुंडी लगा देती हैं और दोनों का कहना था कि इन दोनों को आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, तो वो दोनों हामिला कैसे हो सकती हैं। दोनों का कहना था कि वो बिल्कुल पाकबाज़ औरतें हैं और उन्होंने मेरी बहन को रो-रो कर सारी दास्तान सुनाई और उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे इस घर में चल क्या रहा है। वो साया हमें कहीं घर से बाहर भी निकलने नहीं देता कि हम घर से बाहर जाएं और किसी को अपनी परेशानी, अपना हाल सुनाएं। ये बात सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी बीवियां सच बोल रही हैं या कोई नया नाटक, कोई नया ढोंग रचा रही हैं। लेकिन वो हमें कस्में खा खा कर मेरी बहन को ये सब बातें बता रही थी। तब मेरी बहन सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने कहा कि हमें किसी बुजुर्ग से राब्ता करना पड़ेगा। अगर ये सब सच है, तब हम लोगों ने एक बुजुर्ग से राब्ता किया जो कि बहुत नेक और अच्छा रूहानी इलाज करता था। उस बुजुर्ग को हम अपने घर ले आए। वो बहुत रूहानी चेहरे वाला था, वो बिला ज़रूरत नहीं बोलता था। वो वहाँ सारे घर में घूम रहा था, बड़ी गौर व फ़िक्र से। वो घर का मुआयना कर रहा था। इस दौरान वो बात कम कर रहा था, लेकिन कुरानी आयतों का विर्द करता जा रहा था। और विर्द करते-करते वो मुसलसल मुझ पर भी इन्हीं आयात का दम कर रहा था। हम सब लोग खामोशी से बैठकर इनको देख रहे थे। तब उन्होंने जो बात हमें बताई, वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उनका कहना था कि मुझ पर किसी ने शदीद किस्म का काला जादू कर रखा है, ताकि मेरी बीवियां मुझसे दूर रहें और मैं इनसे बेजार होकर इनको तलाक दे दूं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवियों का कसूर नहीं है, वाकई में वो सच बोलती हैं। एक काला साया जो मेरे इर्द गिर्द रहता है और मेरी बीवियों को मेरे करीब आने नहीं देता है, उनको खौफजदा करता है। किसी ने इसी नीयत से काला जादू करवाया है ताकि तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब ना हो सके और तुम अपनी दोनों बीवियों को तलाक दे सको। और सारे घर पर काले इल्मों के असरात हैं। ये सब सुनकर हम सब लोग परेशान हो गए। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो मुझ पर और मेरी दोनों बीवियों पर और मेरे घर पर काला जादू करवाए। ये बातें गौर करने की जैसी थी। अभी मैं इन बातों पर गौर व फिक्र कर ही रहा था कि मुझे सामने से सुमैया आती हुई दिखाई दी। सुमैया मेरे फूफो की बेटी थी और हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। कई बार उसने वाज़े अल्फाज में मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे सुमैया टाइप की लड़कियां पसंद नहीं थी क्योंकि सुमैया बहुत ही मॉडर्न लिबरल थी। मैंने आराम से नर्म अल्फाज में सुमैया को इनकार कर दिया था ताकि उसको बुरा भी ना लगे, लेकिन सुमैया फिर भी बाज नहीं आती थी। मेरी पहली शादी के बाद भी वो मुझसे बातों में और इशारों में अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती थी। यहाँ तक कि मैं पहली बीवी से बेजार होकर दूसरी शादी कर ली ताकि वो मुझे सुकून और लज्जत बख्शे। लेकिन जब मेरी दूसरी बीवी से भी मुझे सुकून मैसर नहीं हुआ, तब मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान रहने लगा। और सुमैया मेरे ऑफिस में काम करती थी और वो बहाने-बहाने से मेरे करीब आती थी। एक लम्हे को मुझे ये ख्याल भी आया था कि मैं सुमैया को रिजेक्ट कर दिया, कम से कम सुमैया मुझे वो खुशी तो देती जो शादीशुदा मर्द का हक होता है, ताकि जब इंसान को वो खुशी ना मिले, वो हक ना मिले, तब उसे खूबसूरत से खूबसूरत और अपनी आइडियल से आइडियल बीवी भी किसी काम की नहीं लगती। न जाने क्यों मैंने उसको आते देखा तो मुझे पहला शक सुमैया पर ही हुआ, क्योंकि पप्पू और सुमैया मुझे बातों बातों में अक्सर वर्गलाते रहते थे। पप्पू की भी शदीद ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी सुमैया से हो, क्योंकि वो मेरे बाप की इकलौती बहन थी। लेकिन आपी जब मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गई, मेरे वालदैन का इंतकाल हो गया, तो मेरा इनसे मिलना जुलना बहुत कम हो गया था।
कभी कभार अगर मेरी फुप्पो से मुलाकात होती तो वो यही बोलती थी कि तुम्हारे आसरे में सुमैया अब तक बैठी हुई है। तुमने सुमैया से शादी नहीं की। मैं सोच रही थी कि मेरा इकलौता भाई है और हम दोनों भाई बहन जुड़ जाएंगे। तुम्हारी और सुमैया की शादी होगी। मैंने फुप्पो को कहा कि आप सुमैया की कहीं और शादी कर दें। क्योंकि मैं सुमैया से मोहब्बत नहीं करता, सुमैया को पूरा हक है कि उसको एक ऐसा शख्स मिले जो उससे मोहब्बत करे, उसका ख्याल रखे। जब मैंने इस बात का जिक्र सुमैया से किया कि मैंने और मेरी बहन ने कहा कि हमारे घर पर किसी ने काला जादू करवाया और मेरे ऊपर किसी ने सख्त अमल करवाया है, जिसके बायस मेरी बीवियां मेरे करीब भी नहीं आ सकती। जब ये बात सुमैया को बता रहे थे तो मैंने बगौर उसका चेहरा देखा था। उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उसके चेहरे के तासुरात और रंग एकदम से बदल गए थे और वो हिचकिचा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे और सुमैया फूफो पर शक है, क्योंकि उन दोनों की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि मेरी शादी सुमैया से ही हो, क्योंकि सुमैया मुझसे मोहब्बत करती है और इस आस में उसने अब तक शादी भी नहीं की है। मेरी आपी भी परेशान हो गई, क्योंकि और तो हमारा किससे मिलना जुलना था नहीं, सिर्फ मेरे ऑफिस के दोस्त जो ऑफिस की हद तक ही थे, मेरे कुछ कोलीग जिनसे मेरा मिलना जुलना था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझ पर ऐसा अमल करवाए, क्योंकि ना हमारी इतनी ज़्यादा दोस्ती थी, ना ही कोई ज़ाती दुश्मनी कि कोई मुझ पर सख्त अमल करवाए। हमने एक बार फिर इस बुजुर्ग से राब्ता किया और उससे कहा कि इस अमल का तौर करे। इस बुजुर्ग ने हमें जो जो अमल बताए, हम सब घर वाले उन पर अमल कर रहे थे। उसने हमें बहुत सारी कुरानी आयतें दी, जिसका विर्द हम लोग मुसलसल करते जा रहे थे। इस बुजुर्ग का कहना था कि ये बहुत सख्त अमल है, 40 दिन तक इसके असरात बाकी रहेंगे। इस वजह से 40 दिन तक हम लोगों को बावजू रहकर इन कुरानी आयतों का विर्द करना है और खुद पर अपने घर पर भी दम करते रहना है। लेकिन 3 रोज तक मुसलसल वो बुजुर्ग हमारे घर में पढ़ाई करता रहा, खास कर पर मुझ पर पढ़ाई करता रहा, क्योंकि इनका कहना था कि ये काला अमल खसूसन मेरी ज़ात पर किया गया है। इसी वजह से इसके असरात मेरे घर पर, मेरी बीवियों पर भी हैं। इस अमल की वजह भी उन्हें बता दी गई कि इसकी यही वजह है कि मेरी इज़दवाजी ज़िंदगी नाकाम गुजरे और मैं अपनी दोनों बीवियों को छोड़ दूँ। क्योंकि मेरी बीवियाँ का ये अमल नहीं था, ये भी इस अमल के ज़रिए डॉक्टर्स को भी धोखा हुआ था। इनको भी यही तासुर दिया गया कि ये हामिला है, ताकि मैं इनके किरदार की धज्जियाँ उड़ाकर इन पर बहतान लगाकर इनको घर से निकाल दूँ। लेकिन अल्लाह ताला का बेहद शुक्र था कि मुझे ख़याल आ गया और मैंने अपनी बहन से बात की और उसको पाकिस्तान बुलाया। इस नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की वजह से अब मुझे अपना आप हल्का फुल्का महसूस होता था। वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे, नमाज पढ़ने की तलकीन करते थे और सारा दिन कुरानी आयत के हिसार में मैं और मेरे घर वाले रहते थे। 40 दिन का अमल मुकम्मल हो गया। अब तक मेरी बहन पाकिस्तान में ही थी, क्योंकि मैंने उसको रोक के रखा था। उसके बच्चे अब काफ़ी बड़े थे, इस वजह से उसको कोई मसला नहीं हो रहा था। अब मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मेरी बीवियाँ भी अब मुझसे बातें करती थी, खुश खुश दिखाई दे रही थी। जब 40 दिन का अमल मुकम्मल हुआ और मुझे इस बुजुर्ग ने कहा कि अब इस जादू के असरात बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा चारों कुल पढ़कर खुद पर दम किया करूं, क्योंकि इससे जादू का साया असरात कुछ भी नहीं होता है, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अब बुजुर्ग ने मुझे इजाज़त दे दी थी कि मैं अपनी दोनों बीवियों के पास जा सकता था, लेकिन अब मैं इस शिशुपंज में था कि मैं कैसे अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ कर पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त ज़हनी तराब और अपने नफ्स की तस्कीन ना मिलने की वजह से मैंने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन अब जब मुझे पता चला था कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा था, तो अब हकीकी मायनों में मैं घबरा गया था। लेकिन मेरी दोनों बीवियों ने मुझे हिम्मत हौसला दिया था और मैंने दोनों से वादा किया कि मैं दोनों को बराबर के हकूक दूंगा। इसी तरह मैं अपनी दोनों बीवियों के पास गया और शादी के इतने अरसे बाद मुझे वो तस्कीन, वो खुशी मिली जो एक शादीशुदा मर्द को चाहिए होती है। मेरी दोनों बीवियां भी खुश और मुतमईन दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस दवाजी ज़िंदगी की खुशी मर्द के साथ औरत को भी चाहिए होती है। लेकिन इस काले इल्म की वजह से मैं और मेरी दोनों बीवियां इस खुशी से महरूम थे और मेरी शादी के इब्तदाई दिन इसी काले अमल की वजह से ज़ाया हो गए थे। मेरा दिल कर रहा था कि मुझे पता चले कि किसने मुझ पर यह अमल किया, जिसकी वजह से मैं शदीद अजियत और गम की, गुस्से की कैफियत में रहा। अगर अब भी इसका तोड़ नहीं होता तो शायद मैं पागल होके पागल खाने के अंदर इस वक्त मौजूद होता। मेरे जहन में ये ख्याल आया। मैंने अचानक बगैर बताए पप्पो के घर चला गया। पप्पो सुमैया मुझे यूं अचानक देखकर हैरान रह गई थी और मुझसे मेरे आने की वजह दरियाफ्त की। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने घर पर कुरान खानी रखवाई है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल डगर पर चलने लगी है, वरना तो कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की थी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे हाल पर रहम फरमाया। मैंने पप्पो को सारी रोदात सुनाई कि हम पर काला जादू किया गया था। काले इल्म की वजह से मेरी ज़िंदगी मुतासर हो गई थी, मैं पागल होने को था। मेरी बातों को सुनकर वो ज़्यादा चौंकी नहीं, जैसे कि उनको पहले से सब कुछ पता हो, और उनके चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल सुमैया जैसे थे। पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत, लेकिन इन दोनों माँ बेटी ने
चेहरे देखकर साफ महसूस हो रहा था जैसे इनके सबके पीछे इन्हीं का हाथ हो। और यही सोच के मेरे दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने हवा में तीर चलाया। फुप्पो को कहा कि फुप्पो, आपने और सुमैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मेरी बात सुनकर वो दोनों चौंक गई और हैरान होकर मुझे देखने लगी और कहने लगी कि क्या मकसद है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने इनसे कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने मुझ पर काला अमल करवाया, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवियों के करीब नहीं जा सकता था। ये सब आप लोगों ने किया है इसलिए ना क्योंकि आप चाहती थी कि मेरी शादी सुमैया से हो। मैंने सुमैया से शादी नहीं की, इस वजह से आप लोग इस हद तक गिर गए। आप लोगों ने मुझ पर ऐसा अमल करवा दिया कि मैं परेशान होकर रह गया। इसी अचानक अवतार पर वो माँ बेटी दोनों घबरा गईं और फिर बोलने की लगी कि तुम हम पर झूठे इल्जामात लगा रहे हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सुमैया को रिश्तों की क्या कमी है? वो एक शादीशुदा मर्द से शादी करे, वो भी इस मर्द से जिसकी दो दो बीवियां हो चुकी हों। मगर मैंने इनसे कहा कि मुझे बुजुर्ग ने बताया है कि आप लोग ही हैं जिन्होंने मुझ पर जादू करवाया। मेरा इतना कहना था कि सुमैया हिज़ियानी कैफियत में चीखने लगी और कहने लगी, हाँ, मैंने करवाया था काला जादू तुम पर। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं फिर तुमसे काला जादू करवा दूंगी तुम पर। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे ख्वार हो रही हूँ, लेकिन तुम हो के मुझे नजरअंदाज किए हुए हो। उसकी बातों को सुनकर मैं हैरान हुआ। क्या मतलब? मैंने जो हवा में तीर चलाया था वो सही साबित हुआ था। सुमैया और पुप्पो ही थी जिन्होंने ये सब कुछ किया था। ऐसा कहकर सुमैया चीखती चिल्लाती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई और मैंने पुप्पो की तरफ देखकर कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो शर्मिंदा हो गई, सर झुकाकर कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सुमैया को बहुत बार मना किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन न जाने किन सरगर्मियों में पड़ गई और तुम्हारे पीछे पागल हो गई। इस वजह से उसने ये गलत रास्ता इख्तियार किया। मैंने कहा, पुप्पो, आपको पता है कि मैंने क्या क्या तकलीफें झेली, कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की। आप अपनी बेटी को रोक सकती थी, आप मुझे बता सकती थी कुछ लोग कितने संगदिल और जालिम होते हैं। अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेल जाते हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, इनका जहनी सुकून छीन लेते हैं। सुमैया भी ऐसे ही संगदिल और सेल्फिश थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मोहब्बत वो नहीं होती जो छीन कर जोर जबरदस्ती से हासिल की जाए। मोहब्बत के कुछ तकाजे, कुछ असूल होते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो महबूब की खुशी में ही खुश रहना सिखा देती है। लेकिन सुमैया को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसकी जिद थी जो उसे हर हाल में पूरी करनी थी।